Good morning, students. Today, I am going to take up a topic which was recently introduced previous year, even though we had been applying it right from the beginning. We say it's art integrated learning, and my focus is only for commerce plus 2. That means I am focusing on two subjects, BST and accounts. It would be beneficial both for students as well as teachers. And as per my previous video, which was on induction and orientation for 10th pass students willing to take up commerce, I had a suggestion. When we filter out suggestion, it's our duty to work on it. And उसमें एक बच्चे ने दिया था कि इसको भाषा के दायरे में ना बांधा जाए, थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है. Seeing this, I'm trying to be bilingual, even though in our normal day-to-day practice in school, at times we have to be bilingual for better understanding. अगर हमसे हिंदी बोलने में कहीं कोई गलती हो जाए तो उसके लिए हम माफी चाहेंगे. कोशिश यही होगी दोनों मिला करके हम बोलें, so that आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पे पूरी हो. हमारा फोकस सिर्फ 11th 12th कॉमर्स BST and अकाउंट्स के लिए है. I am not entering into the area till 10th. ये मैं पहले ही क्रिस्टल क्लियर कर दे रही हूँ. So we are going to work on this art integrated education, जिसको हमने दो हिस्से में बांटा है. I have divided it into two parts. First, what is art integrated learning? ये बच्चों के हिसाब से ज्यादा है. You should know what you are doing. And second, from the institution point of view, अगर हमारे कुछ टीचर्स देख रहे हैं and they are taking the responsibility of uploading the data on CBSE site, ये उनके लिए how to upload. +2 में इस पे कोई मार्क्स नहीं होता है. There's no marks allocated on this, but it is mandatory क्योंकि इसके बिना आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा. इसके बिना बच्चों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा. So we have to try to focus that by August, September, our children should be ready with AIL project. And ideal is 5 to 7. 5 to 7 students in a group, they'll be working. So first, when we talk of what is art integration, then we need to understand that integration means combine करना, आपस में मिलाना. So integration of arts with other subjects, that means तीन इसके पार्ट होते हैं, visual, literary and performing art. These becomes an integral part of teaching. बच्चों में अलग अलग इंटरेस्ट होता है, उसके हिसाब से you have to take up and provide project. So the first part is, what is art integrating up? It is an approach of teaching in which students construct and demonstrate understanding through an art form. कोई भी एक आर्ट का फॉर्म हम लेते हैं एंड अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. Students engage themselves in creative process which connects an art form with another subject area and meets evolving objectives in both. वो दोनों के ऑब्जेक्टिव को मर्ज करता है. Now this is working as an ice breaking session.
आइस ब्रेकिंग सेशन मतलब एक धड़क खोलने की कोशिश हम करते हैं, जो एक झिझक होती है. We want to remove that and come out to experiential learning. आप अपने एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं. हमने आपको दिखाया, you see, then you understand, and then by doing it you learn more. So it is experiential learning which is taking place in art integrated learning. CBSE has taken up this, and there are 3 types of arts education in school. हम 3 फॉर्म में इसको पढ़ते हैं. Art as in curriculum, art enhanced curriculum, and art integrated curriculum. So when we talk of plus 2, we are at the third one. अब जो हमने कहा था integration of arts with other subject means, ये जो 3 हमने कहा, they are interlinking with one another. Visual, literary, and performing. These 3 becomes an integral part of teaching learning. कईयों को दिखा के कोई चीज समझ में आता, कईयों को पढ़ के करके, and some they perform it. So the significance of it, if I move clockwise, of art integrated education is critical thinking and creativity. There are 2 words we use. One, innovation and other creativity. Innovation comes first. पहले आप दिमाग में कोई चीज सोचते हैं, इसलिए हम लोग इनोवेटिव आइडियाज बोलते हैं, एंड देन उसको करके दिखाते हैं, दैट इज क्रिएटिविटी. और जब आपने करके दिखा दिया, फिजिकली हैव एग्जिबिटेड इट, वी से द चाइल्ड इज क्रिएटिव. Then next is experiential learning and problem solving. You try to solve a problem through the series of experience that you have. And what is the outcome of it? एक joyful life skills. एक होता है out of fear of marks, आप रट के किसी तरह पढ़ रहे हैं. So not memorization is discarded. रट के नहीं. It should be a joyful life skill. जो आप देखिएगा at lower classes, what has been demonstrated by CBSE, how to give the impact of nature with the tapping of finger, rain का आवाज निकालना. आपको कई जो छोटे क्लासेस के मॉड्यूल्स उसमें हैं, टीचर्स टैपिंग फिंगर्स एंड मेकिंग द नॉइज ऑफ अ रेन. तेज से पानी बरस रहा है तब कैसे होगा, कम, एंड चिल्ड्रन एंजॉय इट. Similarly, other things which nature has given us. Then multidisciplinary skill, broadened mindset. हम अपनी सोच को बढ़ाते हैं. Involving different disciplines, areas of specialization. यही आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बोलता है. एंड यही आपका आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग भी इसी को मर्ज करता है. Now there are 3 domains for holistic development of a child. We are working on all the 3 domains. Most of the domains are developed by the time you are in class 7, 8. Cognitive, psychomotor, and affective. And through this Venn diagram, I want to say that there is a overlapping also. If I judge a child in terms of the holistic development, all the 3 domains have to be seen. And then seeing the impact of it, empathy in terms of social awareness, choices, responsible decision making, relationship skills, which is with collaborations, self-management in terms of resilience, self-awareness in terms of reflecting yourself, what you are.
We want to have a cohesive approach towards all. A benefit of art integration is students buy in, getting the things. Then critical thinking skills are being developed. Equity, a sense of respect towards one another. Connective learning, empowerment. इसको अगर ओवरऑल आप देखिए तो एक क्लास में एक बच्चे के फादर कारपेंटर होंगे, दूसरे के डॉक्टर होंगे. When they are working on a particular project, the one whose father is carpenter, वो उसका चीज लेके आता है, and the one whose father is doctor, वो उधर का, and they both go for a fusion. Now, while they are at learning phase, respect for both the jobs is at par. तो हम बच्चों में इक्विटी वाली चीज डालते हैं. कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है. Everything is required with due weightage in the society. So we see with this the objective that comes is to have effective multidimensional growth of the student with physical, intellectual, moral, aesthetic, cultural and scientific aspect for development, promoting a pedagogical tool in the classroom, holistic learning including aesthetic part, and creating awareness on art education as a subject and art as a pedagogical tool. अब आप देखिए आपका ब्रेन का different sides. Those who are from bio can understand better how the different sides, mechanical side, thinking side, creative side, poetic side of your brain, they are being activated. And if you see and you feel that children don't need art of 21st century, we need to redefine. हमको फिर से सोचने की जरूरत है. हमको फिर से सोचने की जरूरत है इस पे. So 21st century creativity is linked to the problem solving. जैसे आप फिर देख रहे हैं that CBE can be implemented only through innovative and joyful experiential pedagogies. Sport related storytelling, critical thinking, creative self direction, ये सब के थ्रू हम डेवलप करते हैं different aspects of collaborating, critical thinking. Now we see how at one side when we say arts में dance, music, theater, puppetry ये सब आता है. Curriculum में आपके subject आता है engineering, math, science, literary and many more. इसका fusion पे लाते हैं. So what happens? Art integration में creative thinking में we examine, we associate, we retain, we apply. It is reflecting on various fronts. Now I'm being specific to the subjects of commerce for 11th and 12th as per your CBSE circular number 33/2020 dated 14th May issued by CBSE. It is mandatory in 11th and 12th also to facilitate competency based education taking up real life situation. लेकिन ये आपका प्रोजेक्ट नहीं है जो आप 80-20 में 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट करते हैं. दिस इज नॉट दैट. दिस इज अपार्ट फ्रॉम इट विथ इनोवेटिव जॉयफुल लर्निंग. ये इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे, क्लास लेवल पे किया जाता है. आपका सजेस्टेड लिस्ट इज गिवन इन एनेक्स्चर 2 में एक्टिविटीज दिया हुआ ऑफ द सर्कुलर. इट हेल्प्स यू टू चूज टॉपिक कि आप 11th-12th में BST में हम लोग अकाउंट्स में भी ऐसे लिए सकते हैं. सो लेट अस सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो आपके 11th में है, ह्यूमन एक्टिविटीज जो 11th का टॉपिक है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव
डिमोनेटाइजेशन आपका 12th का है, मेक इन इंडिया 11th का है, पिरामिड्स फॉर लेवल ऑफ मैनेजमेंट ये 12th का टॉपिक। देन स्किट बेस्ड आपका जो है कि शॉपकीपर सेलिंग बुक्स फाइंडिंग इट डिफिकल्टी, आपका मार्केटिंग में 12th से भी आपको रिलेट कर सकते हो, एंड आप 11th में भी इसको डील कर सकते हो ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेल आउटलेट। पार्टनरशिप डीड 11th से, कर्ताज रोल 11th का, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स 11th का, देन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चॉइस 11th का। देन पपेट, ये बहुत अच्छे से बच्चियां बनाती हैं ओल्ड न्यूज़पेपर को लेके, मार्केट सीन, बिजनेस प्रेमिसेस, बार्गेनिंग बाय अ कस्टमर, फंक्शनल फोरमैनशिप जो आप 12th में एक टेक्निक पढ़ते हैं, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन 12th का, कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या आप एक बैंक अकाउंट 11th में जैसे खोलने जाते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। कोलाज या मोज़ैक वर्क रहता है, उसमें भी आप स्मॉल स्केल रिटेलर्स का दे सकते हैं। कंज्यूमर का अवेयरनेस का क्लिपिंग्स, देन एडवर्टाइजिंग रिलेटेड इश्यूज दे सकते हैं। आजकल के कोई भी टॉपिक आप ले सकते हैं जो कि इन डिमांड है, उस टॉपिक को आप लेकर के कर सकते हैं, बिकॉज कॉमर्स मीन्स कॉमन सेंस। आर्ट एग्जीबिशन में जैसे हमारे बच्चे कॉमर्स पेट लगाते हैं एंड दे आर बीइंग टोल्ड कि आप कॉस्ट देखो, प्रॉफिट मार्जिन देखो, हाउ यू विल सेल, कस्टमर डीलिंग। तो क्राफ्ट आइटम्स बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट, कई बार तो आप पत्थर को कलर करके उसका पेपर वेट बनाते हैं एंड यू गिव इट। फिर आप सब्जी मंडी में वीकली बाजार के बारे में बताते हैं। हैंडीक्राफ्ट आइटम्स में फैक्ट्री विजिट, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है, I expect students in 11th and 12th below 18 are not allowed to, तो unless and until आपका स्पेशल कोई वैसा प्रिविलेज्ड ये है सेक्टर जहां आपको परमिशन मिले, फैक्ट्री विजिट अलाउ नहीं होता है। दिस इज अ प्रॉब्लम वी फाइंड विद एंटरप्रेन्योरशिप आल्सो। कलेक्टिंग फोटोज, डिफरेंट रिटेल आउटलेट्स, एक बैंक का अपीयरेंस, देन डिजाइनिंग थ्रू फोटोशॉप, जिनका आईपी रहता है उन लोग इस काम में है, डिजाइनिंग एंड एडवर्टीजमेंट लोगो ऑफ अ इमेजिनरी प्रोडक्ट। देन आप फ्लायर्स ब्रोशर्स बनाते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्टनरशिप डीड, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपने 11th में पढ़ा है उसके ऊपर। म्यूजिकल प्रेजेंटेशन आप बनाते हैं, कोई भी एक टॉपिक पे लेके रैप आप जो बनाते हैं, एडवर्टीज हैं। देन थिएटर ड्रामा पे आपका नुक्कड़ नाटक होता है, कोई भी कंज्यूमर के राइट्स पे। इनफॉर्मल गैदरिंग ऑफ एम्प्लॉयज इन पार्किंग एरिया, उस पर आप कम्युनिकेशन पे 12th में बनाना चाहते हैं। वर्कर्स स्टेजिंग अ प्रोटेस्ट, देन इंफोग्राफिक मेकिंग ऑन एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो आपका 11th का लास्ट चैप्टर है। प्राइसेस ऑफ शेयर्स जो आपका 12th में चला जाता है स्टॉक मार्केट में। माइंड मैप्स, हैंडमेड कलरफुल क्रॉसवर्ड पजल्स, बिंगो गेम्स, डिबेट्स बड़ा अच्छा रहता है, उसका रिकॉर्डिंग करके आप दिखा सकते हैं। टू ग्रुप्स पुटिंग अप डिबेट ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। अब हम लोग 12th में आते हैं अकाउंट्स के लिए, 11th 12th के लिए। इसमें भी वही आपका सर्कुलर नंबर है सेम। अब आपका आइटम्स में आप देख लीजिए, देयर इज अ वेरिएशन, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, देन क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एरर्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, स्क्रैप फाइल के फॉर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ वाउचर्स जो आपके हैं। अगेन ये आपका दोनों में जाएगा, अकाउंट्स बेस्ड में प्राइसेस ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ टेक ओवर मर्जर्स, ये भी आपका दोनों में अकाउंट्स बेस्ड में चला जाएगा। कंपनीज दैट हैव गेन्ड ड्यूरिंग नेशनल लॉकडाउन, ये आपका रहेगा एक मेजर टॉपिक, इट्स अ वेरी गुड टॉपिक।
पेंटिंग में आप स्टॉक एक्सचेंज का कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक पे आप विद कॉन्फिडेंस कैन डू। बैंक अकाउंट, कैश बुक, पासबुक आप दिखा सकते हैं। कलेक्टिंग कॉपीज ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, डीमैट अकाउंट कैसे खोला जाता है, एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी कैसा होता है, अरेंजिंग अ कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डिटेल, different types of partners, request of a sole proprietor for taking loan from the bank, admission of new partner, discussion on the choice of particular types of shares debentures, art exhibition you can do, prepare a cash book of all the items that you have sold. कई और आपका वैसे आ जाता है बिंगो, कलरफुल माइंड मैपिंग, क्विज़ेस। अब आते हैं हम लोग एनेक्स्चर्स पे। ये थोड़ा सा समझने की चीज है, बोथ फॉर द टीचर्स एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट्स। जो सर्कुलर आपका है वो सर्कुलर में 3 एनेक्स्चर्स दिए हुए हैं। पहला है पेयरिंग ऑफ स्टेट्स। नाउ दिस इज नॉट कंपलसरी फॉर 11th एंड 12th कि आप पेयर करके स्टेट को बनाइए। टिल 9th 10th इट इज टू अंडरस्टैंड क्रॉस डिसिप्लिनरी कल्चरल पार्ट। आप एक दूसरे की सभ्यता को समझिए, इसके लिए आपका पेयरिंग ऑफ स्टेट्स है। 11th 12th में ये जरूरत नहीं है। आर्ट एक्टिविटीज जिसको हमने अभी डील किया कि डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज विच आर टू बी टेकन अप। एंड द थर्ड पार्ट विच इज मोर फॉर टीचर्स नॉट फॉर स्टूडेंट्स। आपका काम एज अ स्टूडेंट इतना ही है कि आप उसको ढंग से बना के रिकॉर्ड करके ईदर पेन ड्राइव में, क्योंकि स्कूल हैज टू कीप द रिकॉर्ड फॉर सीबीएसई फॉर 3 to 5 years, या तो आप उसको सीडी में या पेन ड्राइव में करके अपने टीचर को देंगे ताकि वो उसको अपलोड करके अपने पास रिकॉर्ड में रखेंगे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को। एंड व्हेन इट इज ऑन ऑनलाइन अपलोडिंग, आपका काम एज अ स्टूडेंट इतना ही है, उसको ढंग से रिकॉर्ड करके टीचर को देना विथ योर बोर्ड रोल नंबर इन्वॉल्व इन दैट। And for the teacher, you have to go to the right portal, which is seen over here. Fill up your school's name, affiliation number, it will be opened. Then, what are the various topics that you have taken? And ये आपका self automated ये आपका आ जाएगा, भरते जाना है। And then if we condense and summarize for both students and teachers, it is a pedagogical tool from 1 to 12, and it is a thing taken up under scholastic area to teach other subjects. It is a medium, making it simple, giving opportunity to the students to enjoy, understanding the core concept without any pressure of marks, art activities under an extra tool, visual and performing arts to be taken up. Then this is the detail of an extra 3, which can be further downloaded from the CBSE website also. The point that has to be seen is we are only focusing on 11th and 12th. Up to 12th, uploaded by the school to download the admit card. So it is mandatory. What I said in the beginning, अगर स्कूल नहीं करता है या आप अपने डेटा को नहीं देते हैं तो आपका या स्कूल को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आएगा। सो अगस्त सितंबर तक आपका तैयार हो जाना चाहिए। अब ये देखो, आप पपेट शो का थोड़ा सा ब्रीफिंग है, बिकॉज वी कैनॉट गो विथ, इट विल बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो। उसको जरूरत पड़ेगा हम सेपरेट दिखा सकते हैं। ये पपेट शो जब हम आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशंस उसको, एनलाइटनिंग द बल्ब और योर माइंड विथ वेरियस आइडियाज, दैट पार्ट। अकाउंटिंग को आप कैसे लेते हैं, व्हाट, हाउ, व्हेन, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उसको आप कैसे वर्कआउट करके कोरिलेट करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशंस को आप
Then technology driven education with equity post COVID. कुछ टॉपिक्स आपके कॉमन रहते हैं. टर्निंग challenges into opportunities both for accounts and BST. Take any particular thing. कई ऐसे सेक्टर्स थे जहां लोगों ने बेसिक प्रोडक्शन बंद किया, आयरन एंड स्टील का, और वेंटिलेटर्स बनाने लगे. यू कैन टेक इट कि इकोनॉमी में जब स्लो डाउन हुआ तो कैसे उसको गियर अप किया गया. अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग सैनिटाइजर्स. तो ये तो आप चैलेंजेस था जिसको आपने अपॉर्चुनिटीज में लेकर के वर्कआउट किया. Then you can take up other topics also with all your art integrating through research strategies. And then we have taken it as an art integral, enabling students, encouraging them, making teaching learning with different layers of designing this lesson, which a teacher can easily take up through various sessions. ये एक आपका how you create a chart. Now this was from my side. Any further query from your side is welcomed on this. जितनी हमारी knowledge है हम जरूर चाहेंगे. I would be available. Thank you very much. अगर अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बोलिएगा. हमारे और भी चैनल के चैप्टर्स हैं 11th and 12th के, हर टॉपिक पे हमने बनाया हुआ है. वो पिछले साल का बना हुआ है. Only thing is the suggestion that came this year when lockdown is still unpredictable how long, कि bilingual होना चाहिए. तो हम क्वेश्चन आंसर का जो हम सेशन अब डील करेंगे, I'll definitely try कि थोड़ा बहुत bilingual हो जाए for better understanding of us. So once again, stay at home, be safe, and स्कूल बंद है, आपकी पढ़ाई नहीं बंद है, तो पढ़ते चलिए, समझते चलिए. थैंक यू.